Hello students, welcome back to our online class. I am back with your new subject, new chapter students. So our subject is social science, chapter name is chapter 9, administration of the state. How the states having their administration. In this video we would like to discuss about that way. Okay students, so we won't waste our time. Let's begin. We have already learned that the administration of our country functions at 3 levels. हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंट्री की वो 3 लेवल्स में वर्क करती है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल स्टूडेंट्स, राइट? सो इन द प्रीवियस ईयर we have learned about the working of local self-government institution. In this chapter, we shall learn about how the administration functions at the state level in a democracy. What are the functions of the state government? What are the roles of ministers and members of the legislative assembly? How do people put forward their questions and ideas to the government? How do they ask for the fulfillment of their demands? To understand more about this question, we shall take the example from the medical field. So students, हम लोग ने पता है कि लोकल लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल होते हैं, राइट? और हमने लास्ट ईयर आप लोग जब 6 में थे तब आपने पढ़ा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन क्या होता है. तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से स्टेट लेवल में चलता है, स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से उसके फंक्शंस करते हैं, इफ़ कोई लोगों को इश्यूज़ है तो वो उस इश्यूज़ को किस तरह से सॉल्व करते हैं स्टेट गवर्नमेंट वाले, वो सब चीज़ों के बारे में अब हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे. सो दैट इज़ द टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. ओके, सो देयर इज़ एन example. We will discuss this example first. Okay, see, according to the news on TV, 10 people have died in Surat due to corona. Okay, can people really die due to an epidemic? How would I know? The only thing that I care about is that I am not affected by this. I can hear a procession outside. We demand that the administration take immediate measures to control the epidemic. They should pay attention to maintain cleanliness and take steps to stop the epidemic from spreading. Maybe it's because people are complaining against the cholera epidemic. I think the people who are addressing the procession are leaders. Yes, they are leaders. I have seen them on TV. So students, this is an example कि लोग कोलेरा बीमारी के वजह से बहुत ज़्यादा मर रहे हैं और ये चीज़ टीवी में दिखा रहे हैं. तो 2 लोग बोलते कि कैसे कोई एपिडेमिक में मर सकता है. सो द सेकेंड पर्सन सेड कि ऑब्वियसली हो सकता होगा, बट अभी तक मैं तो अफेक्टेड नहीं हूँ, तो मैं ठीक हूँ. फिर क्या बात हुई, एक पिक्चर में बता रहे कि मैं एक प्रोसेशन सुन रहा हूँ बाहर में, ऐसा बोला जा रहा है. तो तीसरे पिक्चर में क्या बता रहे हैं कि वी ऑल आर डिमांडेड, वो लोग सारे लोग इकट्ठे हुए हैं एक जगह में और वो स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि आप ये एपिडेमिक को बचाइए, कंट्रोल करिए, स्वच्छता अभियान रखो, सब चीज़ें साफ़ सुथरी रखो और इस चीज़ में कोई स्टेप्स लो एक्चुअली. देन फोर्थ पिक्चर में ये बताया जा रहा है कि मे बी इट्स बिकॉज पीपल, ये चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि पीपल्स कंप्लेन कर रहे हैं कि ये कोलेरा एपिडेमिक कब जाएगा, कब ख़त्म होगा. देन फोर्थ पिक्चर में ये बोला गया है, फिफ्थ पिक्चर में ये बोला जा रहा है कि ये सारे लोग मेरे ख्याल से लीडर्स है, ये एड्रेसिंग ये जितने भी बोल रहे हैं ये सारे लीडर्स हैं. और दूसरा बोलता है कि हाँ मैंने ये सारे लीडर्स को टीवी में देखा है तो मैं जानता हूँ उनको. तो ये पूरी बात चल रही है इस एग्जाम्पल में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट उनको कोई एक्शन लेना चाहिए, वो सारे चीज़ों के लिए प्रोसेशन किया गया है, राइट स्टूडेंट्स? तो ये सारे इस एग्जाम्पल में बताए गए हैं. सी
You have read about the incident of the cholera epidemic. You might have observed leaders of your area presenting health issues to the local health officials, the district collectors of other officials. But have you seen the member of legislative assembly, MLA of your area? Have you heard about the legislative assembly? तो इसमें ये बोला गया है स्टूडेंट्स कि ये जो इंसिडेंट बताया गया है वो एक एपिडेमिक वाला एपिडेमिक के बारे में बताया गया है। इसके लीडर्स होते हैं जो लोकल हेल्थ ऑफिशियल सिस्टम होते हैं, उसके एक लीडर्स होते हैं जो ये हेल्थ इश्यूज़ के रिप्रेजेंट करते, सॉल्व करने का करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरेरा का बताया गया है स्टूडेंट्स, वैसे ही सेम अभी हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में कोरोना चल रहा है, राइट स्टूडेंट्स। सो दैट्स वाई इसमें ये पूछा गया कि आपको पता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स कौन है? हैव यू हर्ड अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली? सो लिसन अबाउट दैट वन। द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स आर नोन एज MLA और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स को MLA बोला जाता है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLAs are directly elected by the people. After being elected from their constituency, they became the MLAs and formed the government. Thus, we can conclude that MLAs are the representatives of the people. So, MLA को डायरेक्टली कौन इलेक्ट करता है? हम लोग, आप लोग, हम लोग जो वोट देते हैं उनके थ्रू ही MLA इलेक्ट होते हैं। और जब वो इलेक्ट होते हैं वो डायरेक्टली कंस्टिट्यूएंसी में आ जाते हैं एंड दे बिकम MLA, और उसके बाद वो लोग गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। देन आफ्टरवर्ड्स वी कैन कंक्लूड दैट MLAs आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। जो MLA बनते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव हम लोग के, वी आर द पीपल्स हु हैव गिवन दैट टैग, गिवन दैट title MLA. So that means they are the representative of the people, of us students, right? See, आप इस पिक्चर में देख सकते हो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात। गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली ये रही, ऐसी है स्टूडेंट्स। ओके, सी all the states of India have a legislative assembly. Each state is divided into different constituencies. From each constituency, one representative is elected by the people. The number of seats in the legislative assembly differs from state to state and is decided on the basis of population. Elections are held every 5 years. Candidates can either represent a particular party or stand for election as an independent candidate. Thus, the MLAs can belong to different parties. The Legislative Assembly of Gujarat has 182 seats and is situated in Gandhinagar, which is the capital. The Legislative Assembly meets in the Vittalbhai Patel Vidhan Sabha Ghar. So students, ये जितने भी स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली तो होते ही है, गारंटी। ओके, एंड ईच स्टेट, सारे के सारे स्टेट्स डिवाइडेड है बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसीज में। एक कंस्टिट्यूएंसी मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव जो पीपल ने, जो हम लोग ने उनको चूज़ किया होता है। तो द नंबर ऑफ़ सीट्स, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो स्टेट टू स्टेट्स डिसाइड करते हैं कि उनके पॉपुलेशन क्या है। उनके बेसिस के, उनके पॉपुलेशन के बेसिस में ही पता चलेगा कि स्टेट्स टू स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने लोग हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना एरिया वाइज वोटिंग होती है, एरिया वाइज एमएलए होता है। आपको पता है स्टूडेंट्स? नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। एरिया वाइज एमएलए चूज़ किया जाता है और जितनी एरियाज़ होते हैं वो कैसे होगा, पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। तो जितने पॉपुलेशंस है उसके बेसिस में एरियाज़ है, एरियाज़ के बेसिस में एमएलएज़ है, राइट। इसलिए पॉपुलेशन और एमएलए सीट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। ये जो इलेक्शन है वो हर टाइम 5 सालों में किया जाता है। कैंडिडेट्स कैन एदर रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पार्टी। कैंडिडेट जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर पार्टी में से भी हो सकते हैं, जो और कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होता है, कोई खुद के थ्रू भी लड़ते होते हैं। और ये जो एमएलएज होते हैं वो डिफरेंट पार्टीज़ को बिलोंग करते हैं, वो डिफरेंट पार्टीज़ के होते हैं स्टूडेंट्स।
देन द लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारे गुजरात के लेजिस्लेटिव असेंबली में 182 सीट्स है, जो गांधीनगर कैपिटल है हमारा, वहाँ पे है। तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है मीट्स इन द विट्ठल भाई पटेल विधानसभा घर, ये इसका नाम इस तरह से रखा गया है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ सी, let us learn about how a minister or the chief minister is selected from among the MLAs. The party which has the largest number of MLAs or gains a majority with the support of other parties and or independent candidates forms the government. The governor appoints the leader of the majority part as the chief minister. He or she is invited to form the Council of Ministers. The party that forms the government is known as the ruling party, while the other party forms the opposition. So students, अब हम लोग जानना पता करेंगे कि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर किस तरह से चूज़ किया जाता है एमएलए में से। ओके, तो ऐसे जितनी पार्टीज़ है उसमें बहुत सारे नंबर एमएलएज़ के, बहुत सारे एमएलएज़ हैं, तो जिसकी मेजोरिटी मतलब ज़्यादा लोग सपोर्ट में होंगे वो पार्टी, ज़्यादा लोग जिसके सपोर्ट में होंगे वो लोग ही मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनते हैं स्टूडेंट्स, और तब जाके वो लोग एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। द गवर्नर अपॉइंट्स, फिर जो गवर्नर होता है वो मेजोरिटी पार्टी को, लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। एंड ही और शी इज़ इन्वाइटेड टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर वो जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो उनको इन्वाइट किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। Then afterwards these party form the government and then they become a ruling party and the other party forms the opposition, और जो दूसरी पार्टी होती है वो अपोजिशन में हो जाती है स्टूडेंट्स। ओके, सो नाउ after the elections the governor appoints the chief minister and the council of ministers who will be collectively responsible for the administration of the state and the functioning of the various ministries. Each ministry is housed in different office premises. The legislative assembly is the place where all the MLAs belonging to both the ruling party and the opposition assembly for discussion. Many MLAs have dual responsibilities as an MLA and as a minister. The other organ of the state government is the executive, which comprises of the governor, the chief minister and the council of ministers. The administrative officials who work under the guidance and control of the ministers are also a part of the executive body. The council of ministers are called government executives, while the administrative officials are known as administrative executives. So students, what happened is that जब इलेक्शन हो जाता है तो जो गवर्नर अपॉइंट्स करते हैं, चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट्स करते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स दे मेक अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुए जाते एंड विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट को फॉर्म करने में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट फॉर्मिंग। देन ईच मिनिस्ट्री मतलब सारी की जो मिनिस्ट्रीज़ है वो एक डिफरेंट ऑफिस प्रीमिसेस में चेंज हो जाते हैं, अलग अलग ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि आपका ये पार्ट है, आपको ये देखना है, आपको वो करना है एज अ स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल समवन हैव गेट द इलेक्ट्रिसिटी position, someone would get the water position and all that like stuff students. Okay, and then afterwards the legislative assembly is the place, वो लेजिस्लेटिव असेंबली वो प्लेस है जहाँ पे सारे के सारे एमएलएज साथ में होते हैं और रूलिंग पार्टी बोली जाती है, और जो दूसरे अपोजिशन पार्टी होती है वो डिस्कशंस के लिए वहाँ पे बैठते हैं, और जितने ज़्यादा एमएलएज होते हैं उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और कभी कभी एमएलए और मिनिस्टर भी सेम होते हैं, मतलब वो एमएलए भी है और वो मिनिस्टर भी है, ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स। The other organ of the state government is the executive.
अदर ऑर्गन जो दूसरे ऑर्गन है स्टेट गवर्नमेंट पे, वो एक एग्जीक्यूटिव है जो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को साथ में रखते हैं. Then the administrative officials who work the guidance and control of the ministers. The administrative officials होते हैं वो उनके गाइडेंस में लोग काम करते हैं. किसके गाइडेंस में? मिनिस्टर्स के गाइडेंस में काम करते हैं, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी के स्टूडेंट्स. और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स भी बोला जाता है. और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स बोला जाता है. सो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा आपको लगेगा कि इसको बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन है, राइट स्टूडेंट्स? तो आपको ये कन्फ्यूजन को क्लियर करना है तो आपको एक और बार 2 या 3 या 4 या 5 बार आपको इस टॉपिक को रीड करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको क्लियर कर सकते हो. और मैं तो आपके साथ हूँ ही स्टूडेंट्स, एंड विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो. इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट कि ये इस तरह से कैसे हुआ, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स आई एम देयर टू टीच यू, टू गिव यू दिस गाइडेंस. So that would be good enough to understand you that how the administrator of the state occupied care. So students, I am just putting this word on this paragraph. Later on in the next video, we will discuss about the governor in the next half of this chapter, students. Okay? So students, like, share and subscribe my channel, students. Till there, I will see you in the next video. Bye bye and have a nice day, students. Stay home, stay safe. With the help of this line, I would like to pack up. Bye.